Hello, Bacho. Welcome you all on Live Class Mentors, where we are providing you live classes and recordings for your new subjects and new NCERT, which has been added into your CBSE curriculum. So, from class 3rd to 8th, CBSE have added one new subject, which is computational thinking, in which you all are being trained how a computer think. मतलब एक कंप्यूटर कैसे सोचता है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करता है, कैसे आंसर करता है, सेम चीज सेम स्किल्स आपको सिखानी है. तो बेसिकली अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने 4 कंप्यूटेशनल टेक्निक का यूज किया था कि सबसे पहली होती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, उसके बाद पैटर्न रिकॉग्निशन, देन डिकम्पोजिशन, देन हमारा एल्गोरिथमिक थिंकिंग. एंड बाय यूजिंग ऑल दीज 4 टेक्निक्स वी हैव टू come to a consensus, come to solve a equation and a solution and a question to arrive at a common solution. So in this whole chapter, in this whole exercise, that for the computational thinking, they will be providing you different conditions. You have to follow all the condition and come to a consensus, come to a solution. So that will be your final answer. So for doing this, you have to use these 4 things. Abstract thinking, that you have to use more deliberate, more in details, as no normal thinking. Normal thinking is plus is plus, but here you have to go to multiple steps and then arrive at a common solution. Now, second is pattern recognition. You have to recognize the patterns which has been used here to solve these questions. Third is your decomposition. There will be complex problems. You have to decompose the problem into simpler ones and then solve it. And algorithmic thinking, all the problems must be based on a simple logic or simple thing and simple principles that you have to find out and solve your problem. So this book is supposed to be studied together with your mathematics book. So first chapter in your mathematics book for class 7th was large numbers around us, and the same chapter here also. So first of all, you are supposed to complete your mathematics chapter from the new NCERT book, then come here and try to solve all these questions. And there are not so many questions, there are only 10 questions, so let's solve them one by one. Starting with question number first, which is like this. X is a 6-digit number. We have a number which is 6 digit formed using exactly 3 different digit, और इसमें 3 different digit हैं. मतलब 6 digit का नंबर तो है, लेकिन 3 different तरीके के digit इसमें यूज करी हैं. One of the digit appear once. एक digit मान के चलो, अगर 3 digit जो हमने यूज की हैं वो A B C हैं, तो एक digit एक बार आएगी, suppose it's A. Another appears twice. दूसरी digit 2 बार आएगी, suppose it's B. And the third appears at 3 times. So suppose it is appearing 3 times like this. When 2 lakhs are added to X, जब हम इस X में 2 लाख और ऐड करते हैं, तब भी रिजल्टिंग नंबर इज स्टिल अ 6 डिजिट नंबर. फिर भी एक 6 डिजिट नंबर ही रहता है रिजल्टिंग नंबर. तो व्हाट इज द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू? सो अगर तुमसे कोई पूछे कि हाईएस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है, तो हमें पता है कि अगर हम सारी वैल्यूज को 9 9 9 9 9 9 एंड 9 ले लें, 1 2 3 4 5 6, वी हैव टू टेक 7, वी हैव टू टेक 6 डिजिट नंबर ना, 6 अंकों की संख्या बनानी है, तो 6 बनाएंगे, 1 हटा देंगे, तो हम कितनी 6 9 लेंगे. 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंकों की 6 डिजिट की सबसे बड़ी पॉसिबल नंबर एग्जिस्ट करेगा मैथ्स में. नाउ उसने कहा ये कब मिलेगा जब उसमें 2 लाख ऐड होगा. तो 2 लाख और हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा. हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, तो हम 2 लाख और पीछे जाएंगे, क्योंकि ये तो y है और y हाईएस्ट पॉसिबल नंबर है. तो हाईएस्ट पॉसिबल ये नंबर हो सकता है. 2 लाख पीछे गए तो क्या बचा हमारा 9 9 9 9 9 and 9 minus 2 7 7 9 9 9 9 9. बट ये नहीं है. उसने क्या कहा था? उसने हमें कहा था कि एक नंबर एक बार आना चाहिए, 2 नंबर 2 बार आने चाहिए, और 3 डिजिट ऐसी जो 3 बार आनी चाहिए. तो यहाँ पे तो भाई 7 एक बार आ रहा है, लेकिन बाकी की डिजिट जो है 9 9 9 9 9 ये 5 टाइम्स आ गई. हमें 2 और डिजिट चाहिए, 3 डिफरेंट डिजिट चाहिए थी. तो हमारे पास 2 डिफरेंट डिजिट हैं, एक और हमें इंसर्ट करनी है. और आपको यहाँ पे कैच क्या है? हाईएस्ट पॉसिबल नंबर. तो हाईएस्ट वैल्यू सोचनी है. तो हाईएस्ट कब होगी? जब हम मैक्सिमम 9 रिटेन करेंगे. और मैक्सिमम कितना रिटेन कर सकते हैं? मैक्सिमम हम एक डिजिट को 3 बार रिटेन कर सकते हैं. तो हमें ये लिखना चाहिए कैसे? 7 एक बार आ गया, स्टार्टिंग विद 7, क्योंकि 7 से स्टार्ट करेंगे, इससे कम से हम स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा सबसे आगे है. उसके बाद 999 को हम अगर 3 बार लिख लेते हैं, 1 2 3, उसके बाद हमारे लास्ट के 2 9 बचते हैं. हमें क्या जाना है? हाईएस्ट नंबर पे जाना है. 7 हमने ऑलरेडी यूज कर लिया, 9 यूज कर ले, तो हाईएस्ट क्या बचा? अब 8 बचा. तो आपका नंबर क्या हो सकता है? 7 9 9 8 8. ये नंबर एक्स की वैल्यू हो सकती है, ये वैल्यू x की हो सकती है. उसने क्या पूछी थी? हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y. और y पे हम कब आ रहे हैं? जब हम इसमें 2 लाख ऐड कर रहे हैं. तो ऐड कर दो फिर से 2 लाख. तो बेसिकली हमने क्या किया? हमने कंप्यूटेशनल थिंकिंग का यूज किया. हमें जैसे कन्वीनिएंट लगा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का इस्तेमाल करके हमने वैसे सॉल्व किया. हमेशा ऐसे सवाल पीछे से सॉल्व करने में ज्यादा इजी होते हैं. तो पीछे से सॉल्व किया तो ये हमारा 8 8 9 9 9 और 9 7 and 2 9. तो हाईएस्ट पॉसिबल नंबर इज 4 times 9 and then 8. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. सी ऑप्शन करेक्ट होगा. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड,
ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें यूज कर सॉल्व करना है कॉम्पिटिशनल थिंकिंग का यूज करके। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स? अब इसमें आपका लॉजिक चेक हो रहा है कि प्रोडक्ट क्या होगा ऑल द नंबर्स का, और टेलीफोन डायल पैड। तो आपने टेलीफोन डायल पैड देखा है, वहां पे नंबर्स कैसे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन स्टार 0 एंड हैशटैग। तो 0 होता है, तो आप 0 को किसी भी नंबर सेट में मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। बाकी के 3 ऑप्शन इग्नोर करो, ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। तो टेलीफोन डायल पैड पे जब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा 0 मिलता है, तो नन ऑफ दीज आंसर होगा, इसलिए इसने 0 आंसर भी नहीं दिया यहाँ पे। अगर 0 देता तो आप लोग टिक कर देते, तो क्या आंसर होगा? नन ऑफ दीज होगा। थर्ड क्वेश्चन है, सैम फॉर्म्स टू डिफरेंट 6 डिजिट नंबर। सैम क्या कर रहा है? सैम 2 डिफरेंट 6 डिजिट नंबर बना रहा है, तो 6 डिजिट है तो 6 ब्लैंक लिख लो, 1 2 3 4 5 6, अनदर नंबर 1 2 3 4 5 6। 2 नंबर बनाने, 2 हमने लिख लिया। एक्स एंड वाई यूजिंग डिजिट फ्रॉम 0 to 9, और ये 0 to 9 डिजिट यूज कर रहे हैं। 0 to 9 मतलब 0 भी यूज कर सकता है, 1 यूज कर सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर सेट यूज कर रहा है। नंबर सेट में कितने नंबर है? 10 नंबर है, लेकिन यहाँ पे तो 12 डिजिट है, तो कुछ कंडीशन तो दी होगी उसने। क्या कंडीशन दी है हमें? Exactly 2 डिजिट आर कॉमन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में 2 डिजिट कॉमन है, मतलब ऐसी हमें 2 डिजिट मिलेंगी जो दोनों में हो सकती हैं, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, ठीक है। द डिजिट 9 अपीयर्स इन द सेम पोजीशन इन द बोथ नंबर। लेकिन जो 9 है, 9 इसने बता दिया, जो 2 डिजिट थी उनमें से 9 एक नंबर है जो दोनों में होगा, और दोनों में सेम पोजीशन पे। तो अगर मैं से फर्स्ट पोजीशन पर रख रही हूँ तो यहाँ भी फर्स्ट पे रखना पड़ेगा, सेकंड पे तो सेकंड पे रखना पड़ेगा। ओके, वाई एंड्स विद एक्स, तो 2 नंबर है, मान लो ये हमारा एक्स है और ये वाई है। वाई किस पे एंड कर रहा है? वाई एंड कर रहा है 0 पे। Y ends with 0. Y is ending with 0 and has only one even digit, और इसमें एक ही even digit है। even digit का मतलब क्या है? even digit का मतलब है कि भैया ये इसमें सिर्फ 0 ही एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो सकता है। एक even digit का मतलब कि ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। 0 2 से डिवाइड हो जाता है, 0 यहाँ पे पहले ही आ गया, तो बाकी के जो 5 नंबर है इसमें कोई भी even नहीं आएगा। कोई भी even नहीं आएगा तो क्या नंबर बचे हमारे? कोई भी even नहीं आएगा तो y में फिल करने के लिए नंबर बचे हैं 1 3 5 7 एंड 9। ये 5 नंबर हैं जो y में फिल किए जा सकते हैं। फिर उसने कहा है एंड इट्स डिजिट्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, और डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, तो कैसे? सबसे बड़ा 9, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। 9 7 5 3 1, ये नंबर हो सकता है y, तो y नंबर तुम्हें मिल गया। अब हमारे पास है x बताना है। 6 इज प्रेजेंट इन x, 6 जो नंबर है वो 6 जो है इनमें से वो हमारा किस में आएगा? x में आएगा। अब तो हमें वैसे पता चल गया कि नंबर हमारे बचे ही क्या हैं। इस पूरे सेट में से देखो 0 चला गया, 1 चला गया, 3 चला गया, 5 चला गया, 7 चला गया, 9 चला गया, ठीक है, ये चले गए। लेकिन उसने एक और चीज कही थी, क्या कि जो 9 है वो दोनों नंबर में सेम पोजीशन पे है, तो अगर y में 9 यहाँ आ गया तो x में भी 9 यहाँ आएगा, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया। फिर उसने कहा कि जो 6 है इज प्रेजेंट इन x, ये x में है, एंड द नंबर ऑफ इवन डिजिट, जो इवन डिजिट के नंबर है। अब देखो इवन डिजिट कौन कौन सी हमारे पास बची है? हमारे पास 2 4 8 बचा है। इसके अलावा क्या हम कोई और इवन डिजिट ले सकते हैं यहाँ पे? तो उसने हमें एक और कंडीशन दी थी, क्या कि 2 डिजिट, एग्जैक्टली 2 डिजिट हमारी सेम होनी चाहिए। तो हमें पता चल गया हमें इवन डिजिट ही सेम करनी पड़ेगी, क्योंकि और तो सारी यहाँ पर आ गई, और तो सारी यहाँ आ गई। क्यों ऐसा रखना पड़ेगा? क्योंकि उसने कहा है 6 के दोनों साइड बराबर होनी चाहिए इवन डिजिट। तो हमारे जो अभी सेट बचा उसमें 3 ही इवन डिजिट हैं। अब 3 इवन डिजिट तो बराबर नहीं बढ़ सकती, हमें 4 चाहिए, तो इसलिए हमें 0 लेना पड़ेगा। तो हम क्या लेंगे? हम इसमें फिल करने के लिए ले सकते हैं 2 4 8 6 एंड 0 ये 5 जो नंबर है वो हमें यहाँ फिल करने हैं। अब 6 के दोनों साइड बराबर आना चाहिए, तो पता चल गया 6 तो भाई मिडल में आएगा यहाँ पर। अब ये 2 जगह बची हैं, दो जगह बची दोनों साइड 6 के, यहाँ क्या फिल करना है देखते हैं, वही बता देगा। इफ x इज द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर, अब यहाँ पे हमें मिल गया x क्या बनाना है? लार्जेस्ट पॉसिबल बनाना है। तो यहाँ पे लार्जेस्ट पॉसिबल कब बन सकता है? जब हम यहाँ 8 रखेंगे, तो 9 8 रखना पड़ेगा। 8 के बाद लार्जेस्ट बनाना है तो 4 रखना पड़ेगा, फिर हमें लार्जेस्ट बनाना है तो 2 रखना पड़ेगा, लार्जेस्ट बनाना है तो 0 रखना पड़ेगा। सो ये लार्जेस्ट नंबर हमारा बन सकता है। What is the difference between x and y? क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं हुआ। कितना लंबा कंप्यूटेशनल थिंकिंग सारा यूज कर लेंगे, लास्ट में डिकम्पोज करके हम सिंपल टेक्निक पे आ गए कि अब हमें सिंपल सब्ट्रैक्ट करना है, बस माइनस करना है। इन दोनों को माइनस करना है तो हमारा क्या मिल जाएगा? डिफरेंस मिल जाएगा। तो माइनस कर देते हैं x में से y, तो क्या बचेगा? देखो 0 में से गया तो 0 0, 2 में से 1 गया तो 1, 6 में से 3 गया तो 3, 4 में से 5 नहीं जा सकता तो 14 में से 5 जाएगा तो 9, फिर यहाँ 7 बचेगा, 7 में से 7 0, 9 में से 9 0, तो 9 3 1 0 is possible difference. 9 3 1 0 is possible difference. Option number A is
correct for this question. Now question number 4, we have this beautiful question. Now what it is asking us to solve, if each of the rows follows the same theme. All these rows, we have 1 2 3 4 rows, they are following same theme follow कर रही है. What will come in the question mark? क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? तो यहाँ पे जो सिंबल लगा है इसका मतलब है this gray circle can be smaller than or equal to 7, smaller than or equal to 7 आ सकता है हमारा इस ग्रे सर्कल में. तो सबसे हाईएस्ट क्या 7 है. अगर 7 के लिए ट्रू हो जाएगा तो लोएस्ट वाले नंबर्स के लिए तो अपने आप ही ट्रू हो जाएगा. तो 7 के लिए हम इसको प्रूव करके देख लेते हैं. तो अगर मैं इन ग्रे सर्कल में 7 7 फिल कर देती हूँ, फिल कर दिया 7 7 7. नाउ टेस्ट इट कि ये सिंबल सही हमारा डिनोट कर रहा है. नहीं, इसका मतलब है कि ये वाला नंबर स्मॉलर देन है देन द फर्स्ट नंबर. तो 1787 1778. तो 177 बड़ा है या 178 बड़ा है? 178 बड़ा है तो पैटर्न फॉलो हो गया. अब इसके जितने भी छोटे नंबर है सबसे फॉलो हो जाएगा. अब आते हैं हम सेकंड में. सेकंड में क्या है, ये वाला लेफ्ट वाला पार्ट छोटा होना चाहिए राइट वाले पार्ट से. तो सबसे हाईएस्ट पॉसिबल नंबर है 3. 3 के लिए फॉलो करके देखते हैं. 3 के लिए फॉलो किया, 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 और यहाँ पे भी 3. तो नंबर क्या है 335, यहाँ पे 333. तो हमें पता है 335 हमेशा ट्रू होगा. अब इससे कोई भी छोटा नंबर आप रख के देखो हमेशा ट्रू होगा. इस वाले में छोटा रख के देख लेते हैं. 2 से छोटा क्या 1 है, बस 1 है तो 1 रख के देखते हैं. तो यहाँ पे बना मेरा 196 एंड 131, दैट इज लार्जर देन 196 113. अगर 1 के लिए ट्रू है तो 2 के लिए भी ट्रू होगा. हाईएस्ट पॉसिबल के बराबर ट्रू होना चाहिए. तो यहाँ मैं ऐसा कौन सा हाईएस्ट पॉसिबल नंबर रखूं कि उसके लिए ट्रू हो जाए और उससे छोटे वालों के लिए तो अपने आप ही ट्रू हो जाएगा. तो पहला ऑप्शन है 6. अगर मैंने 6 फिल किया तो क्या बन रहा है मेरा 656 606 इज लार्जर देन 665 066. तो भाई देखो यहाँ 665 है, यहाँ 656 है, तो क्या लार्जर होता है? वो लार्जर तो नहीं होता. 6 के लिए ट्रू नहीं है. 6 के लिए ट्रू नहीं है तो अब जब उससे छोटा क्या है, उससे छोटा ऑप्शंस में क्या है, 6 से छोटा 5 है. 5 के लिए ट्रू करके देखते हैं. 5 के लिए ट्रू करके देखेंगे. 5 5 5 5 5 and 5. Here we have 555 065 is smaller than 555 605, which is true. 605 से छोटा होता है 065, तो इट इज ट्रू. अगर 5 के लिए ट्रू है तो सारे छोटे नंबर्स के लिए भी ट्रू होगा. तो करेक्ट ऑप्शन इज सी. एक्चुअल में इट इज ट्रू फॉर 4 आल्सो, बट हमें हाईएस्ट नंबर भी देखना है ना, दिस सिंबल कि स्मॉलर देन, ये सर जो ग्रे है ये स्मॉलर और इक्वल होना चाहिए 5. तो हाईएस्ट नंबर हम 5 तक पहुंच सकते हैं, इसलिए 5 वाला सी ऑप्शन करेक्ट होगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. What will come in the place of question mark? Question mark की जगह पर क्या आएगा? We have crore and minus re. So then there have been written some zeros. Then we have 1000 और minus d. Then there are written 2 zeros. तो इसे देख के कुछ ऐसा मुझे फील हो रहा है कि इसमें क्या नंबर ऑफ जीरोस को कहीं ना कहीं काउंट किया गया है. तो अगर आप करोड़ देखें तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़. करोड़ में होती है 7 जीरो. करोड़ में कितनी 7 जीरो होती हैं. पीछे लिखे 2 अल्फाबेट आर ई मतलब अगर मैंने 2 जीरो मान लू, 7 माइनस 2 किया तो मेरे पास क्या आया 5 जीरो, और इसने यहाँ पर 1 2 3 4 5 जीरो ही रिप्रेजेंट करी है. तो मतलब पैटर्न यही है कहीं ना कहीं. एक बार और वेरीफाई कर लेते हैं. बिलियन में वेरीफाई कर लेते हैं. बिलियन में कितनी जीरोस होती है? बिलियन में 9 जीरोस होती हैं. ठीक है, 9 जीरोस होती है. नाउ 1 2 3 4 5 अल्फाबेट्स आर रिटन. तो 9 minus 5 which is 4 and 4 zeros have been represented here. So pattern is same. इजी क्वेश्चन था, पैटर्न बहुत जल्दी पता चल गया. ऐसे भी इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं. नाउ लाख, लाख में कितनी जीरो होती हैं? तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख. लाख में होती हैं 5 जीरोस. 5 जीरोस है एंड 2 अल्फाबेट्स. तो 5 minus 2 it is 3 which means 3 zeros. 1 2 3 3 zeros. Option number C is correct. Question number 6. We have this number. 6 numbers token. We have 6 number token. 1 2 3 4 5 6 number tokens have been written here. Rearrange them to form a 6-digit number. हमें इन्हें rearrange करना है, 6 digit का number बनाना है, which is evident by looking here. The difference between the first and last digit is as small as possible. First और last digit में जो difference है वो as small as possible होना चाहिए. तो as small as possible कब कब हो सकता है? 1 minus 2 1, 5 minus 4 1, 7 minus 5 which is 2. तो 8 minus 7 is 1. तो यहाँ पे 3 केस बन सकते हैं फर्स्ट लास्ट डिजिट में कि 1 और 2 हो, या फिर हमारे पास हो हमारा 4 and 5, या फिर 7 8. 3 हमारे नंबर्स, 3 नंबर इनसे स्टार्ट और एंड बन सकते हैं. 3 स्पेयर के 3 स्पेयर
दो स्पेयर के दो स्पेयर के दो स्पेयर के, टोटल 6 नंबर्स, 3 2 6, 3 नंबर्स देन 3 नंबर्स, स्टार्टेड एंडिंग स्टार्टेड एंडेड स्टार्टेड एंडेड बन सकते हैं। ओके फिर उसने कहा है और भी कुछ, द 100 डिजिट इज डबल द 1000 डिजिट, 100 और 1000 डिजिट पे। तो अब आप 6 ना ब्लैंक बनाओ, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 डिजिट का नंबर बनाना है। जो यहाँ 1000 पे जो नंबर होगा, वंस टेंस 1000 पे जो नंबर होगा वो हमारा सॉरी वंस टेंस 100, 100 पे जो नंबर होगा वो 1000 का डबल होगा, 1000 का डबल होगा। अब डबल पेयर वाले कितने नंबर है यहाँ पे, डबल पेयर वाले हैं 1 और 2, तो 100 वाला डबल होगा तो इट शुड बी 2 1। और हमारे पास डबल पेयर वाले कितने नंबर्स हैं, ये डबल होगा 100 वाला तो 4 2, और हमारे पास कोई नंबर्स है, हाँ 4 8 भी तो है, एक हो सकता है 4 8। ये 3 पेयर हमारे बन सकते हैं डबल वाली कंडीशन से, वहां से 6 नंबर बने, यहां से 3 नंबर बन सकते हैं, तो ये नंबर बनेंगे। अब उसने और भी कुछ कहा है, नो कंजुगेटिव डिजिट अपीयर नेक्स्ट टू ईच अदर, दो कंजुगेटिव डिजिट एक दूसरे के साथ में नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए तो भाई ये नहीं आ सकता, ठीक है। कंजुगेटिव क्या है, इसमें तो भाई दोनों नंबर साथ साथ है, ये नहीं, ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती 1 2 वाली। इंस्टेड क्या पोजीशन हो सकती है, इंस्टेड पोजीशन हो सकती है कि मेरा जो स्टार्टिंग एंडिंग वाला पोर्शन है ना, वहां से मैं नंबर्स निकालूं। अभी थोड़ा और रुक जाते हैं, और भी इसने कुछ कहा है, ऑल गिवन टोकन्स मस्ट बी यूज्ड वंस, एक बार यूज करना, हाँ उतना तो अंडरस्टूड था हमें कि एक ही बार यूज करना होगा। फिर कहा उसने हाउ मेनी डिफरेंट सिक्स डिजिट नंबर्स बिटवीन 2 लाख एंड 8 लाख, 2 लाख से 8 लाख के बीच में मुझे नंबर्स बताने हैं। तो जो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एंडिंग विद 2, बीच में जो नंबर हमारे, ये नहीं हो सकता, 1 लाख है, मुझे 2 लाख से ज्यादा चाहिए। तो नंबर क्या हो सकता है, नंबर हो सकता है स्टार्टिंग विद 2 एंडिंग विद 1, पहले वाले केस से यहां से। देन आया 4 एंड 5, 2 से 8 लाख के बीच में चाहिए, तो ये तो दोनों कंडीशन हो सकती हैं, 4 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है। बट यहाँ देखो 4 ऑलरेडी यूज हो रहा है कंडीशन में, 4 ऑलरेडी यूज हो रहा है, तो 4 वाला तो कंडीशन में बीच वाले में यूज हो रहा है। उसने कहा था कि एक टोकन जो है उसको एक ही बार यूज कर सकते हैं, तो 4 5 वाले नंबर्स भी हम नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी यूज हो गए हैं, 4 ऑलरेडी यूज हो गया है। अब हमारे पास मिनिमम डिफरेंस वाली कंडीशन फर्स्ट एंड लास्ट के लिए बचता है 7 एंड 8। वो कैसे हो सकता है कि अगर हमारा नंबर 7 से स्टार्ट हो और 8 पे खत्म हो, 8 से स्टार्ट हो 7 पे खत्म हो, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, सेम बात है कि हमें 8 लाख से ऊपर नहीं जाना, 2 से 8 लाख के बीच रहना है, तो ये वाली कंडीशन जो है मेरी लास्ट वाली, ये भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, ये भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन 2 1 के साथ हमारा 4 8 वाला एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब यहाँ पे 4 हो यहाँ पे 8 हो, तो ये 2 नंबर आपके बन सकते हैं। बाकी के 2 नंबर आपको बस फिल कर देना जहां आपको फिल करना हो। 2 कंसेक्यूटिव नंबर नहीं आ सकते तो 5 यहां नहीं आएगा, 5 कहां आएगा, 5 यहां आएगा। और क्या बचा है, 7 बचा है ना इस कंडीशन में, तो 7 यहां आएगा। इस वाली कंडीशन में देखो 4 के बाद 5 नहीं आ सकता, कंसेक्यूटिव नहीं है, तो 5 यहां आएगा। एंड 2 4 क्या बच गया हमारे पास, 1 बच गया, 1 को हम यहां फिल कर देंगे। हमारी ये तो जो 2 नंबर हैं, ये इकलौते ऐसे नंबर्स हैं, मतलब 2 लौते ऐसे नंबर्स हैं जो इन सारी कंडीशन को फॉलो करेंगे, इनके अलावा कोई और नंबर फॉलो नहीं कर सकता सारी कंडीशन को। तो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 नंबर्स इज योर आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, यू हैव दिस 2 5 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिफरेंट डिजिट फ्रॉम 0 to 9। डिफरेंट डिजिट यूज करनी है 0 to 9, तो कितने ऑप्शन है हमारे पास, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. One tip I am giving you to solving these questions: always write your available options towards the right hand side or left hand side whenever you are solving the questions, so that it will give you a clarity what are the numbers that you can use. Okay, ठीक है. Both numbers have some digits missing. दोनों नंबर में क्या है, कुछ डिजिट मिसिंग है. यहाँ पर देखो 3 ब्लैंक है, इधर भी 3 ब्लैंक है, सही बात है. No two consecutive digit of the number series are present in the same number. No two consecutive digit. Consecutive मतलब होता है लगातार, जैसे 1 2 3 4 काउंटिंग्स. यहाँ पे 1 लिखा है तो इसके आसपास 2 नहीं आ सकता, ठीक है, 0 नहीं आ सकता, 0 2 नहीं. यहाँ पे 9 है तो इसके आसपास 8 नहीं आ सकता, ठीक है. अगर यहाँ पे 4 है तो इसके आसपास 3 और 5 नहीं आ सकता, ठीक है. यहाँ पे 6 है तो इसके आसपास 5 और 7 नहीं आ सकता. इसके दोनों कंसेक्यूटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, 5 एंड 7, तो दोनों नहीं आ सकते. तो कुछ कंडीशन है. फिर उसने कहा है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस ऑफ द नंबर्स फॉर्म्ड. तो मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस क्या होगा नंबर फॉर्म जब हम करेंगे. तो मैक्सिमम डिफरेंस कब आ सकता है, जब एक नंबर आपका मैक्सिमम बनाए और एक नंबर मिनिमम बनाए. तो मिनिमम मैक्सिमम बनाना है. अब हमें डिसाइड करना है कि हम किसको मिनिमम बनाए किसको मैक्सिमम बनाए. तो देखो हमारे पास यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है,
तो व्हाट वी शैल मेक मैक्सिमम, कौन किसको मैक्सिमम बनाए? देखो सेकंड डिजिट जो है वो यहाँ 4 है या 1 है, तो सेकंड डिजिट ऑलरेडी 4 इज ग्रेटर देन 1, तो मुझे मेरे हिसाब से जो नंबर 2 है उसको अगर हम मैक्सिमम बनाएंगे तो फायदा होगा। मैक्सिमम कब बना सकते हैं? 9 से स्टार्ट हो तभी होगा, तो 9 से स्टार्ट कर दिया। अब हमारे पास ऑप्शन है यहाँ फिल करने के लिए बीच में, मैक्सिमम बनाना है, याद रखना 9 के बाद नंबर आता है 8। क्या मैं 8 यहाँ फिल कर सकती हूँ? देखो 4 एंड 6 है, 8 में यहाँ फिल कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ, उससे मेरा मैक्सिमम नंबर की तरफ बन सकता है। 8 फिल कर दिया, तो हमने अवेलेबल ऑप्शन में से क्या क्या यूज कर लिया? देखो 1 ऑलरेडी यूज है, 9 ऑलरेडी यूज है, 8 हमने यूज कर लिया। अच्छा, 1 कैच हियर, अब एक कैच और था। कैच क्या है कि कुछ नंबर ऑलरेडी यूज है, तो हम 9 नहीं यूज कर सकते स्टार्टिंग में, 9 नहीं यूज कर सकते, तो मैक्सिमम नंबर बनाना है तो 8 यूज करेंगे। 8 यूज कर लिया हमने, ठीक है। हमने 4 यूज करा हुआ है, हमने 6 यूज किया हुआ है, तो 1 यूज कर लिया, 9 यूज कर लिया, 8 यूज कर लिया, 6 यूज कर लिया, इसके अलावा कोई और यूज किया नहीं। मैक्सिमम नंबर बनाना है तो हम अब यहाँ पे क्या फिल करने की कोशिश करेंगे? 7 फिल करने की कोशिश करेंगे। 7 फिल करने की कोशिश करेंगे तो एक लेग आएगा। लेग क्या आएगा? देखो 6 जो है यहाँ पर हमारे पास, अगर हमने यहाँ पे 7 फिल किया तो कंजुगेटिव वाली कंडीशन विड्रॉ हो जाएगी। उसने कहा था कंजुगेटिव नंबर नहीं आने चाहिए, तो हम यहाँ 7 नहीं फिल कर सकते, हम यहाँ 5 भी नहीं फिल कर सकते, हम यहाँ 3 भी नहीं फिल कर सकते, ठीक है, क्योंकि 4 और 3 भी कंजुगेटिव हो गया। ना हम यहाँ 5 फिल कर सकते, ना हम यहाँ 3 फिल कर सकते, ना हम यहाँ 7 फिल कर सकते, ना 5 ना 7 ना 3, तो बचा क्या? 2 और 0। तो 2 और 0 में से हमें फिल करना पड़ेगा, तो हम क्या फिल करें? हमें क्या बनाना है? मैक्सिमम नंबर बनाना है। तो सपोज हमने 2 फिल कर दिया, अब हमारे यहाँ पे फिल करना है लास्ट में, मैक्सिमम नंबर बनाना था। अगेन अब यहाँ पे देखो, ना तो आप 5 फिल कर सकते, 2 फिल कर दिया, हमारे पास 3 का भी ऑप्शन था, हम 3 भी फिल कर सकते थे, और मैक्सिमम नंबर बनाना है, लेकिन 4 कंसेक्यूटिव, अगेन 3 नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखो हम 5 नहीं कर सकते, 7 नहीं कर सकते, कंसेक्यूटिव नंबर है, 2 ऑलरेडी फिल कर दिया, 2 भी ऑप्शन से चला गया, हमारे पास क्या बचा है? 3 बचा है। मैक्सिमम नंबर बनाना है, 3 फिल कर दो, ओके। अब ऊपर वाले नंबर में फिल करते हैं, मिनिमम बनाना है इसको, लेकिन 0 फर्स्ट में नहीं फिल कर पाएंगे। 0 फिल कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि अगर 0 आगे हो गया तो नंबर सिर्फ 3 डिजिट का बच गया, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती आगे, उसको पीछे फिल कर सकते हैं, तो पीछे फिल कर सकते हैं। 0 मैंने लास्ट में फिल कर दिया, ठीक है, लास्ट में फिल कर दिया। 0 मैंने यहाँ पे क्यों नहीं फिल करा बीच में? इसलिए क्योंकि 1 और 0 फिर से कंजुगेटिव हो जाते, तो मैं 0 नहीं फिल कर सकते। यहाँ हम 2 नहीं फिल कर सकते, 2 हमने वैसे ही फिल कर दिया, तो 0 फिल हो गया। हमारे पास बचा है 3 और 5, हमें क्या बनाना है? मिनिमम नंबर बनाना है, तो हम यहाँ 3 फिल करेंगे, यहाँ 5 फिल करेंगे। अब बात आ रही है कि हमें मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस बनाना है। मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस क्या होगा? 8 4 2 6 3, नंबर 2 में से नंबर 1 को माइनस करो, तो 3 में से 0 गया 3, 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया, तो क्या बचेगा? तो 7 बच रहा है। 11 में से 5 गया, 11 में से 5 गया तो 6 बचेगा। देन वी हैव 1 में से गया तो 3 5 5 3 6 7 3, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में नहीं है तो मतलब हमने कहीं पर कुछ मिस्टेक फिल किया। मिस्टेक फिल क्या करिए? इसको बस एक ही तरीका है ठीक करने का कि हम दोबारा एक बार कंडीशंस को देखें कि हमने कंडीशंस ठीक फिल करी हैं या नहीं करी हैं। तो लेट्स चेक देम अगेन। तो यहाँ पे अगर हमने ध्यान से देखा तो हमें क्या पता चला कि एक नंबर हमने फिल ही नहीं किया है। एक नंबर हमने कौन सा फिल नहीं किया? हमने 7 तो फिल ही नहीं किया, 7 तो कहीं पे आया ही नहीं है। तो अगर मैं 7 यहाँ पे फिल करूं तो 6 और 7 फिर से क्या हो जाएगा? कंजुगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 7 नहीं फिल कर सकती, और ऊपर मुझे मिनिमम नंबर बनाना था। मिनिमम नंबर बनाया तो 3 ऊपर गया, ये मेरे को इंटरचेंज करने पड़ेंगे। क्या इंटरचेंज करने पड़ेंगे? 0 नीचे आएगा और 7 ऊपर जाएगा। तो अब पूरी कंडीशन चेंज हो जाएगी। पूरी कंडीशन कैसे चेंज हो जाएगी? नंबर्स अब चेंज हो गए, नंबर्स चेंज हो गए यूनिट डिजिट वाले। क्या नंबर्स बने? ऊपर है हमारा 3 1 5 9 7 एंड नंबर 2 है 8 4 2 6 0। तो 0 में से 7 जाएगा, अब 10 में से 7 जाएगा तो 3, यहाँ पे बचेगा 5, 5 मतलब 15, 15 में से 9 गया तो 6, यहां से कैरी ली थी तो 11, 11 में से 5 गया तो 6, और 4 में से यहां से कैरी गई तो 3 में से 1 गया तो 2। सो आंसर आएगा 5 2 6 6 3, 5 2 6 6 3, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
तो जो एक मेन कंडीशन थी कि आप नंबर्स को रिपीट नहीं कर सकते, वो यहाँ पे रिपीटेशन हो गया था हाईएस्ट नंबर देखने की वजह से। ऊपर भी तुम्हें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना था, यहाँ पे 1 था, 0 फिल नहीं कर सकते, 2 हमारे पास बचा नहीं है, 3 ही फिल करना पड़ेगा, तो इसलिए 3 यहाँ नहीं आ सकता, 3 वहां जाएगा और इधर क्या आएगा, 7 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ए बी सी डी ई ईच हैव अ डिफरेंट नंबर कार्ड अमंग 100 1000। क्या नंबर कार्ड है हमारे पास, 100 1000 देन 10,000 4 zeros then 1 lakh 1 2 3 4 5 zeros then 10 lakh 1 2 3 4 5 6 zeros। ठीक है, C has an even number of zeros in his number। C के पास even number 0, तो C यहाँ पे नहीं हो सकता 30 में, 50 में नहीं हो सकता। C कहाँ हो सकता है, 100 के पास, 10,000 के पास या फिर 10 लाख के पास, even number of zero। A has 2 zeros less than C। A के पास C से 2 जीरो कम है, तो C भाई 100 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 2 जीरो कम के लिए हम A के पास जाएंगे तो A के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो यहां से हमारी ये कंडीशन कैंसिल हो गई C के लिए, C नहीं हो सकता ये। हाँ, बट ये हमारा A हो सकता है। A हो सकता है कब, जब C हमारा 10,000 है, और अगर C हमारा 1 2 3 4 5 6 10 लाख हो गया, तो हमारा ये भी 10,000 भी A हो सकता है। फिर उसने कहा D's नंबर हैज 4 zeros मोर देन A, लेकिन D के पास 4 मोर जीरो है देन A, तो A से अगर 4 ज्यादा जीरो पे जाओगे तो वो तो नंबर हमारे नंबर कार्ड में है ही नहीं, तो यहां से एक और कंडीशन हमारी क्या फिक्स हो गई कि भाई ये नहीं होगा हमारा A हमारा 2 जीरो वाला ही होगा, और उससे 4 जीरो ज्यादा है 10 लाख में, तो ये हो जाएगा D। वी हैव C A एंड D। उसने फिर कहा है द नंबर ऑफ जीरोस इन B में जो नंबर ऑफ जीरो इज मोर देन A से ज्यादा है बट लेस देन C, A से ज्यादा C से कम, तो B यहां पर होगा। उसने पूछा विच नंबर कार्ड डज सी हैव, ई हैव, तो ई के पास कौन सा बचा, ई के पास ये वाला कार्ड बचा 1 2 3 4 5 6 विच इज 1 लाख, 5 zeros एंड 1 6 नंबर इज 1 लाख, तो ई के पास 1 लाख है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। 4 फ्रेंड्स, 4 दोस्त हैं, एलेक्स बॉब कैल्विन एंड डेविड। कितने दोस्त हैं, 4 हैं, एलेक्स बॉब कैल्विन एंड डेविड। हैव अ डिफरेंट प्रोफेशन, तो यहां पे आप एक ऐसे टेबल बनाओ जिसमें हम फिल करेंगे इन चीजों को और अच्छे से। सो यहाँ पे नेम लिखना आदमी का, यहाँ पे प्रोफेशन, और एक और चीज दी है इसने सैलरी, यहाँ पे लिखेंगे सैलरी। देन वी विल बी फिलिंग। कितने दोस्त हैं, 4 दोस्त हैं, तो 4 कॉलम बना लो। ठीक है, 4 कॉलम बना लिया। अभी हम फिल करना स्टार्ट करेंगे कि कौन सा कहाँ एग्जिस्ट करेगा। द क्रिकेटर अर्न्स द हाईएस्ट, क्रिकेटर अर्न्स द हाईएस्ट, और व्हाट इज द सैलरी अमाउंट, 40K 50K 60K 70K, तो हाईएस्ट है, हाईएस्ट सैलरी 70K। ठीक है, यहाँ पे हम इसे ऑर्डर में लिख लेते हैं सैलरी को, ये 70K है, उसके बाद 60K वाली सैलरी होगी, फिर 50K होगी, फिर 40K होगी, सैलरी का ऑर्डर यही रखते हैं। तो हाईएस्ट किसकी, क्रिकेटर की, तो प्रोफेशन है क्रिकेटर जिसकी हाईएस्ट सैलरी है 70K। देन एलेक्स अर्न मोर देन बॉब व्हाइल द डॉक्टर अर्न्स मोर देन डेविड। एलेक्स जो है वो बॉब से ज्यादा कमाता है, ठीक है, तो बॉब कहीं यहाँ पे होगा, बॉब कहाँ, इन दोनों में हो सकता है, तभी तो एलेक्स ऊपर आएगा, तो यहां से इतना पता चल गया बॉब यहाँ पे होगा, इन दोनों में से कहीं होगा। फिर उसने कहा व्हाइल द डॉक्टर अर्न्स मोर देन डेविड, और जो डॉक्टर है वो भी डेविड से ज्यादा कमाता है, हु इज एन इंजीनियर, जो कि एक इंजीनियर है। तो अगर मान के चलो जो डॉक्टर है वो 60,000 वाला डॉक्टर आ गया, तो वो भी किससे, डेविड से ज्यादा, तो ये भी हमारा इन दोनों में से डेविड हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, तो इंजीनियर की सैलरी यहाँ आ सकती है। फिर उसने कहा बॉब इज द लॉयर, लेकिन बॉब तो लॉयर है, बॉब क्या है, लॉयर है, एंड नीदर बॉब नॉर डेविड हैज एन एग्जैक्ट सैलरी ऑफ 50, और जो 50 वाली सैलरी ये बॉब की नहीं है, बॉब की नहीं है, तो ये सैलरी किसकी होगी, डॉक्टर की होगी। हमारे पास एक ही प्रोफेशन बचा है कि बॉब तो लॉयर हो गया और जो डेविड था वो इंजीनियर हो गया, तो हमारे पास सिर्फ डॉक्टर बचा है, और जो बॉब है और डेविड है इन दोनों की सैलरी हमारी नहीं हो सकती 50K, तो डॉक्टर की बची। अब उसने कहा था डॉक्टर इंजीनियर से ज्यादा कमाता है, तो यहाँ पे इंजीनियर हो गया, और बॉब तो लॉयर था, तो एक ही चीज बची है वो लॉयर का हो गया, तो ये हो गया बॉब हमारा, और इंजीनियर हो गया डेविड। ठीक है, ये हमारी यहां से पता चल गई। फिर उसने कहा है एलेक्स अर्न्स मोर देन बॉब व्हाइल द डॉक्टर अर्न्स मोर देन डेविड, और बॉब से ज्यादा कमाता है एलेक्स, तो एलेक्स आएगा सबसे ऊपर, एक्चुअल में एलेक्स इज द क्रिकेटर। बचा कौन हमारे पास, कैल्विन बचा है, तो कैल्विन यहां पर है। पूछा क्या था उसने, विच ऑफ दीज ऑप्शन शोज द करेक्ट प्रोफेशन एंड सैलरी ऑफ कैल्विन, तो कैल्विन इज अ डॉक्टर एंड अर्न्स 50K, तो कैल्विन इज अ डॉक्टर अर्न्स 50K, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 9th हो गया। 10th पे आते हैं। द फॉलोइंग आर द क्लूज ऑफ 6 डिजिट पासवर्ड ऑफ निशाज लैपटॉप। निशा के पास लैपटॉप है और उसका कुछ पासवर्ड है इस तरीके से 35 टेंस। 35 टेंस का मतलब है 10 में होती है 1 0, तो ये 350 है, एक्चुअल में इट इज
350 multiply 10, 35 multiply 10 which is 350. Now 31 thousands. So 31 को मुझे 1000 पे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 zeros, 1 2 3 zeros and 31. 25 ones का तो सीधा 1 मल्टीप्लाई करना है, तो it is 25 only. Now I have 4 2 3 hundreds, 4 2 3 hundreds, 4 2 3 hundreds, so hundreds multiply करो, 100 मतलब 2 zeros and then I have 4 2 3. 14 10,000, 10,000 मतलब 4 zeros, 1 2 3 4 zeros, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 10,000, 14,000, तो 4 zeros 1 2 3 4 and 14. What is निशा's पासवर्ड? इन सबको ऐड करके निशा का पासवर्ड निकालना है. सेम कंप्यूटेशनल थिंकिंग हमने यूज किया, पैटर्न पहचाना, डिकम्पोज किया और इसको सॉल्व करेंगे. 5 तो 5 हो गया, 5 and 2 7, 3 and 3 6, 2 and 1 3, 4 4 8, 8 and 3 4 4 8, 8 and 3 9 10 11, carry 1 1 1 2. So it is 213675. 213675 is option number D. D is your correct answer for question number 10. Now we have one homework question. So let's do the homework. I just narrate you the homework question. The thinking spot in every chapter they had provided you. So you have to solve this question on your own. And next class I will be teaching you solving the answer of this question, so you can match it. So first you have to try it all the basis of these 4 computational technique that I had told you today and showed some questions how to approach. We have column number A, B and C contain 3 numbers each such that the number of times each number appear in all 3 columns combined is equal to its values, which means if 2 appears, 2 क्या होगा, 2 दो बार आएगा, 2 अगर यहाँ पे लिखा है तो 2 बार आएगा. 3 appears thrice, 3 है जो 3 बार आएगा. अगर यहाँ पे 4 लिखा है तो 4 टाइम्स आएगा. ईच कॉलम कंटेन्स एटलीस्ट 2 डिफरेंट डिजिट, और हर कॉलम में एटलीस्ट 2 डिफरेंट डिजिट होने चाहिए. अगर यहाँ 2 लिखा है तो उसमें 3 आ सकता है, 4 भी आ सकता है, एटलीस्ट 2 है, मैक्सिमम भी जा सकता है लेकिन 2 होना चाहिए. इफ कॉलम इज द ओनली कॉलम विद 3 डिफरेंट डिजिट, तो कॉलम ए में ऑलरेडी 3 डिफरेंट डिजिट है, तो विच मीन्स हियर वी हैव 4 हियर एंड 3 and 2 डिफरेंट डिजिट है, तो 3 and 2 होगा. Then which column has the highest sum? So you have to fill some digits here and you have to find out the sum. Add the numbers, then find out the sum and correct the correct answer. Okay, tick the correct answer. That will be a homework question. Then try it in your home. If you are able to do, then good, and write and drop the answer in the comments. Whatever your answer, A, B, C, D. Okay, with that, thank you so much, and share these classes with your classmates who all are worried about this new subject, computational thinking. At least you will be knowing the technique to use the questions. After completing the whole syllabus, we will be starting some practice questions for you all. And you have artificial intelligence also. So classes for AI will also start in very short duration. Bye bye. Thank you, and drop your feedback in the comments.